नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार व विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। वी आर हियर ready with the next issue of Bodhi News for 22nd December. Bodhi News is brought to you by Bodhi Booster Knowledge Portal. Learners and achievers will find enough intellectual content to stimulate and whet their appetite on a regular basis. www.bodhibooster.com, brought to you by PT Education and PT's IES Academy. We use multiple sources for creation of our knowledge content. These are some of the sources on the screen. The editorials from which are rotated. हम इन सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के संपादकीय लेख समय समय पर आपके लिए लाते हैं और इन्हीं पर आधारित हमारे विश्लेषण होते हैं। वक्त के साथ आपकी अपनी एक अच्छी लाइब्रेरी बनती जाएगी। The 5 editorials for our analysis today are, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज के 5 संपादकीय लेख विश्लेषण हेतु। नंबर 1, Water disputes and permanent tribunal concept. अंतरराज्य जल विवाद और स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव। स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड द लर्निंग डेफिसिट। भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति और कमियां। Problems with resolving water disputes in India. This being a very hot topic, we have 2 analysis with a lot of supporting content today. बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत में जल विवाद सुलझाने की समस्याएं। 4th, One India, One Elections और एक भारत एक चुनाव या। एंड 5th, Reforming Healthcare in India. भारत में चिकित्सा जगत की सुविधाओं को सुधारने का प्रयास। आई होप These 5 will be covering a broad range. आपके सामने स्क्रीन पर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं। Whenever we analyze and edit, always we will present to you the various subject areas from which this particular topic is derived or is connected with. I think it's time for me to begin with the very first analysis. But before that, remember, making your own notes in the Bodhi News notebook is very crucial. It will help you maintain a permanent inventory of your own wisdom. So shall we begin with the first analysis? Here goes. आइए पहला विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। Water disputes and permanent tribunals. Center-state relations, Indian politics, constitution and law, and the source is also given on the screen. Okay, here is the beautiful article on grappling with water disputes. आइए इस लेख में जिसमें जल विवादों से निपटने से होने वाली समस्याओं पर गहरा प्रकाश डाला गया है। Today, water disputes between states are adjudicated by ad hoc water tribunals. Suggestion प्रेजेंटली बाय द गवर्नमेंट इज टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट ट्राइब्यूनल। पिछले 40 वर्षों में भारत में होने वाले अंतर्राज्य जल विवादों में एक कॉमन स्थिति ये रही है कि हमेशा उन्हें तदर्थ यानी कि एड हॉक न्यायाधिकरणों द्वारा ही सुलझाया जा रहा है। व्हाट डज द वर्ड एड हॉक मीन? एड हॉक लिटरली मीन्स क्रिएटेड फॉर दैट स्पेशल पर्पस। अब यह सुझाव है कि एक स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया जाए और एड हॉक वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल्स बनाना बंद कर दिया जाए। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सो दिस इज अ मेजर शिफ्ट इन द पॉलिसी मेकिंग डायरेक्शन टेकन बाय द सेंटर ऑन दीज वेरी डेलिकेट एंड इमोटिव इश्यूज। Union Cabinet has proposed subsuming all existing tribunals for speedier adjudication. न्याय निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी विद्यमान न्यायाधिकरणों यानी ट्राइब्यूनल्स को समाहित करने का प्रस्ताव रखा है। इट सीम्स टू बी द सीजन ऑफ सबज्यूमिंग। GST will subsume most of the indirect taxes, and similarly the proposed permanent tribunal will subsume all existing water dispute resolution tribunals. I hope the concept of subsuming is clear. Replacing by absorbing within oneself. But for just one institution with one Supreme Court judge as the chairperson, the attempt to give a ruling within 3 years will always remain a doubt. The sheer number of disputes is high. परंतु जब ये परमानेंट ट्राइब्यूनल बन जाएगा तो चिंता क्या जता रहे हैं
केवल एक संस्था जिसमें केवल एक न्यायाधीश चेयरपर्सन होंगे, उनसे 3 वर्षों में न्याय की उम्मीद करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें काम बहुत है और डिस्प्यूट्स भी बहुत हैं. In December 2016, the Supreme Court said, अब ये बहुत महत्वपूर्ण एक जटिलता, that under Article 136 of the Constitution, it has all the powers to hear appeals arising from a river water dispute tribunal decision. Whereas the Interstate Water Disputes Act only bars the SC from hearing the original complaint, not an appeal against the tribunal's decisions. अब ये एक बहुत बड़ा न्यायिक पेच फंस गया है. क्या फंसा है भैया? देखिए, जितने भी अंतर राज्य विवाद निपटान न्यायाधिकरण हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके कानून, उनके बेसिक कानून के तहत, ये कानून की पूरी लिस्ट हम आपको यहां पे अभी देने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत अच्छे रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, के तहत ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मूल शिकायत नहीं सुन सकता. लेकिन एक बार ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर से कोई राज्य सहमत नहीं है, a state which is unhappy with the order given by the tribunal which is set up for that purpose of resolving that dispute, that state can approach the Supreme Court with an appeal, and the Supreme Court has said that under Article 136 nobody can stop it. Hence, even if the Parliament Tribunal is made, SC may still hear appeals. तो अब ये परमानेंट ट्राइब्यूनल बनने के बाद भी यदि अपीलीय प्रक्रिया जारी रही तो मामले तो बरसों तक घिसटते रहेंगे. कैन सेटिंग अप अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बिफोर गोइंग टू द परमानेंट ट्राइब्यूनल बी डन? तो इसका एक रास्ता बता रहे हैं ऑथर कि एक स्थायी न्यायाधिकरण तक जाने के पहले राज्य क्या एक विवाद निपटारण या निवारण समिति तक जा सकते हैं, तो शायद वहीं पे बहुत से मामले सुलझ जाएं. Whatever happens, positive is that the expert agency will collect data on rainfall, irrigation, surface water flows. Data has to be unanimously acceptable and beyond questioning in disputes. देखिए, इस तरह के सभी झगड़ों में, जो कि बहुत ही इमोशनल इश्यू हर राज्य के लिए हो जाते हैं क्योंकि किसानों की आजीविका उससे जुड़ी होती है, एक एजेंसी बनेगी, जो अच्छी बात है परमानेंट ट्राइब्यूनल के साथ, जो पूरे भारत भर की वर्षा के आंकड़े, सतही जल स्तरों के आंकड़े, प्रवाह यानी कि फ्लो के आंकड़े इकट्ठा करके रखेगी. और ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उससे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सके, नहीं तो फिर डेटा के बिना तो कुछ भी होगा नहीं. यूनानिमसली अग्रीएबल डेटा इज द बेडरॉक ऑफ एनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. ऑल्सो विल स्टेट्स एक्सेप्ट द परमानेंट ट्राइब्यूनल्स फाइनल जुडिशियल ऑर्डर्स. भारत में जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो ये कि इफ अ स्टेट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट परमानेंट ट्राइब्यूनल्स फाइनल ऑर्डर्स, देन हु पुल्स अप द स्टेट? सो आई होप ये एक अच्छा इंसाइट आपको वाटर डिस्प्यूट्स पे यहां मिला. Now, a very important announcement. इसमें ध्यान रखिएगा, ये सारे नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, तो ये मुद्दा आपको क्लियर हो जाएगा. The announcement is that you can derive more resources on this issue from this web page displayed on your screen, bodhibooster.com/p/bodhiresources.html. आप इस वेब लिंक को टाइप करेंगे अपने URL ब्राउजर बार में, तो आपको ये पेज दिखाई देगा. ये बोधी बूस्टर की साइट है. आप जब ये URL हमने यहां टाइप कर दिया है, दिख ही रहा है आपको, जब इसमें आप टाइप कर देंगे तो ये बोधी रिसोर्सेस का पेज ओपन हो जाएगा. यहां आपको रिवर्स, वाटर डिस्प्यूट्स, रिपेरियन रिसोर्सेस दिखेंगे. इन्हें आप ओपन कर लें. यहां आपको ये 4 रिसोर्सेस मिलेंगे. दिस इज रेगुलरली एनरिच्ड. ये बढ़ती जाएगी वक्त के साथ, बट एज ऑफ नाउ यू हैव 4. The very first master resource, Rivers of India and the World, is an amazing resource center for you if you want to understand this issue of भारत और विश्व की नदियां. ये एक बहुत डिटेल्ड वेब पेज आपके लिए बनाया गया है, जिसमें नदियों से संबंधित और एग्रीकल्चर और नदियों का जो रिलेशन उससे संबंधित बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेस हैं. सो आई होप, और ये यहाँ पे 3 PDF हैं. अभी हमने जिस लॉ की बात की थी, आई होप यू रिमेंबर दैट वी स्पोक अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ अंडर विच एवरीथिंग हैपन्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपील सुन सकता हूं. वो लॉ Act 33 of 1956, Interstate Water Disputes Act, and the rules under that act made in 1959. The PDF is available at number 2. Just download it and read it. I hope that is clear. Great. So that was the important announcement. This is the resource page, and I hope you have understood the basic of this topic. Possible exam questions on this topic.
objective questions, many can appear. To handle those objective questions, as we said, please use these resources. यदि आप इन संसाधनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत से जो आपने यहां से डाउनलोड किए हैं या ओपन किए हैं, एक दो लिंक्स होंगी, बाकी के पीडीएफ्स हैं, तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जवाब देने में मदद हो जाएगी. 2 subjective essay type questions are on the screen. Let's quickly see. भारत में अंतरराज्य जल विवादों का निपटान करने हेतु एक एकल या केंद्रीयकृत न्यायाधिकरण की स्थापना का विश्लेषण कीजिए. दूसरा सवाल, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए प्रमुख अंतरराज्य जल विवादों पर प्रकाश डालिए. I hope this helps you get the complete idea on this topic. Thank you. Bodhi Bhasha resources are now available on the YouTube channel of Bodhi Booster. Do check them out. Moving on. Now we look at state of education in India, learning deficit. भारत में शिक्षा की स्थिति और शिक्षा में होने वाली अनेक कमियां. ये विषय जिन ब्रॉडर टॉपिक से लिया गया है वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. अखबार का सोर्स भी आपको बता दिया गया है. Here is the edit. Bridging the learning deficit. Deficit यानी घाटा या कमी. It is the right time, in fact the high time, that Ministry of HRD revises and is revising the National Educational or Education Policy NEP of India. ये बिल्कुल सही समय आ गया है, उचित समय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करके कुछ नए प्रयास अब करने लगा है. प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिचुएशन इज रियली बैड देयर. हमें यह समझना होगा कि किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष उसके लिए प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक पूर्व शिक्षा के होते हैं, क्योंकि वहीं पर पूरी फाउंडेशन एक छात्र की तैयार होती है. यहां भारत की स्थिति बहुत खराब है. अब एक टेक्निकल मुद्दा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. सप्लाई साइड प्रॉब्लम और डिमांड साइड प्रॉब्लम. ये जो समस्या भारत में है, क्या ये आपूर्ति पक्ष की समस्या है या मांग पक्ष की समस्या है? इज इट अ सप्लाई साइड प्रॉब्लम और डिमांड साइड प्रॉब्लम? इसका मतलब क्या हुआ? ये आप बार बार पढ़े लिखे लोगों को ये टर्म्स यूज करते देखेंगे तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम समझाता कोई नहीं है. आइए इसको समझें. सप्लाई साइड मतलब जब आपकी सप्लाई ही क्रिटिकल रिसोर्सेस की इतनी खराब है या अपूर्ण है कि अच्छी डिमांड होने के बाद भी कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एजुकेशन सेक्टर, सप्लाई ऑफ बेसिक मॉनेटरी रिसोर्सेस, फंड्स, supply of physical classrooms, uniforms to the poor kids, or the not so well, students coming from families which are not doing pretty well monetarily or financially, supply of textbooks by the government, this is supply side. तो आपूर्ति पक्ष में ये सारी चीजें आ गई. कक्षाएं, गणवेश, पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति जो सरकार द्वारा होती है. डिमांड साइड, डू पेरेंट्स वांट टू सेंड किड्स टू स्कूल और नॉट? तो मांग पक्ष यह है कि क्या पालक ये वाकई चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं. फ्रॉम 2000 onwards, Indian governments have given huge funds to school in the hope that the low enrollment rates can be curbed and more people will enroll. 2000 के बाद से उस दशक में भारत सरकार ने, अनेक सरकारों ने, राज्य सरकारें भी हैं, बहुत पैसा दिया है ये सप्लाई साइड की समस्या को खत्म करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि नामांकन दरें लगातार बढ़ेंगी. और उम्मीद क्या रही वो डेटा आपके सामने है. 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के लिए क्या सरकारों की उम्मीद रही? इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं, इन्हें आप जरूर नोट करते चलिएगा. But where the governments fail is in understanding that enrollments is just the first step. सरकारें जहां गलती कर देती हैं वो ये कि नामांकन केवल पहला चरण होता है, दूसरी समस्याएं तो जारी ही हैं. क्या समस्याएं हैं? हाई क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन इज मिसिंग. उच्च गुणवत्तापूर्ण और एक समान शिक्षा का भारी अभाव है. यहां मैं आपको भारत और अमेरिका का एक कंपैरिजन देना चाहता हूं. लेट अस क्विकली कंपेयर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया एंड इन अमेरिका. सबसे पहले भारत में द टर्म पब्लिक
स्कूल इज एन एक्सट्रीमली अब्यूज्ड टर्म. जब भी आप पढ़ते हैं ये पब्लिक स्कूल है, तो हमारे यहां उसका मतलब होता है प्राइवेट स्कूल. इन अमेरिका पब्लिक स्कूल रियली मीन्स अ पब्लिक स्कूल, यानी सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्कूल. दूसरी चीज, भारत में इतनी भयंकर स्ट्रेटिफिकेशन शिक्षा में हो चुकी है कि स्कूल अपनी ब्रांड से जाने जाते हैं. छोटे छोटे अबोध बच्चों के जीवन में पूंजीवाद का ये क्रूर चेहरा बहुत जल्दी सामने आ जाता है. तो आगे चल के वे संवेदनशील नागरिक कैसे बनेंगे, ये तो बहुत सोचने लायक बात है. करोड़ों रुपए और अरबों रुपए से बने ये स्कूल और इतनी प्रति वर्ष कमाई करने वाले ये स्कूल पूरी ताकत से अपनी अपनी ब्रांड्स बनाते हैं भारत में. तो समाज में जातिगत प्रथा की तरह ही पिताजी के इन्फ्लुएंस और इनकम लेवल से बच्चे की शिक्षा की पूरी भविष्य की दिशा तय हो जाती है. अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो वहां क्या है? सारे स्कूल एक बराबर. आपके घर के पास का जो भी स्कूल है, आप बच्चे को वहां एडमिट कर दीजिए. नाम से नहीं जाना है, आप सिर्फ अपने नियरेस्ट स्कूल में बच्चे को दाखिला दिला दीजिए. इन अमेरिका द सिस्टम इज वेरी क्लियर. द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस पब्लिक स्कूल्स इज मेंटेन्ड इन द मोस्ट humanly possible egalitarian manner, and a parent just needs to get their kids admitted in the nearest school without worrying about quality. In India, माता पिता की आधी जिंदगी और आधी कमाई केवल स्कूल खोजने में निकल जाती है, फीस में बची आधी निकल जाती है. तो ये जो एक वेलफेयर स्टेट का ढोंग भारत में हुआ है, उस ढकोसले और ढोंग में छेद करने के लिए ये अकेला आर्ग्यूमेंट काफी है. बट दिस इज हाउ थिंग्स आर एंड नो गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू चेंज इट. भारत में कोई भी सरकार इसको बदल ही नहीं पाई, सिर्फ बातें हुई हैं आज तक. I am sorry for bringing this very cruel fact in a very blunt manner in front of you, but there is no point being an ostrich now. Girls dropout rates, जिस तरह समाज में महिलाओं के साथ भयंकर भेदभाव आज भी भारत में जारी है, उसी तरह लड़कियों का जो नामांकन रद्द हो जाता है, शिक्षा छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है. समाज का डायरेक्ट आईना है. आप ये स्कूलों को तो छोड़ दीजिए, गांवों को छोड़ दीजिए, आप IITs और IIMs देख लीजिए, वहां कितनी लड़कियां पहुंच रही हैं. IIT और IIM का दोष नहीं है, द होल सोसाइटी इज लाइक दैट. सो आई बिलीव टॉप टू बॉटम डीप सर्जरी इज नाउ रिक्वायर्ड. टीचर एब्सेंटिज्म, शिक्षकों की अनुपस्थिति, लो टीचिंग क्वालिटी, खराब गुणवत्ता एंड आउटडेटेड पेडागॉजीज, अप्रचलित शिक्षण शास्त्र, यानी ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका आपको ज्यादा फायदा नहीं है. समझ गए? ये सब चीजें परीक्षा में काम आ जाएंगी. वर्कफोर्स नीडेड फॉर द 21st सेंचुरी इंडिया. क्या हम वाकई में निम्बल, स्किल्ड और डिजिटल रेडी बच्चे तैयार कर पा रहे हैं? द क्लियर आंसर इज आइदर नो or partially yes. What is the solution? Author कहते हैं activity based learning and teaching at the right level. I hope this analysis gave you a first hand perspective into some of the issues and the proposed or possible solutions. Some possible exam questions. Some objective questions can come based on the data you have seen here. Some subjective essay types. क्या भारतीय शिक्षा पद्धति 21वीं सदी के कार्यस्थल के अनुरूप है? यदि हां तो कैसे, और यदि ना तो क्यों नहीं? भारतीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी कमजोरियां बताइए और विश्लेषण कीजिए. आई होप दिस क्विक एनालिसिस गेव यू अ गुड इंसाइट. बोधी बूस्टर ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज IAS अकेडमी. www.bodhibooster.com पे लगातार जीके और नॉलेज रिसोर्सेस का आनंद लें. हिंदी में hindi.bodhibooster.com पर सभी संसाधन एक साथ उपलब्ध हैं. फॉर रियली सीरियस लर्नर्स, एनरोल फॉर बोधि प्रबोधन सर्विसेज विच इज पार्ट ऑफ बोधि बूस्टर प्रीमियम पोर्टल. The beauty of Bodhi News is captured in essence as you see on the screen. This is what will always benefit you. We will take a look at the problems with resolving water disputes in India. The topics from which this single topic is derived is also mentioned on the screen, and the source also is mentioned.
Mostly still water. Proposed river disputes law changes won't do the trick. एक बहुत अच्छा लेख जो हमें बताता है कि सरकारें अब क्या प्रयास कर रही हैं और इनसे जुड़ी समस्याएं क्या हैं. This is a technical article and we have brought a lot of technical facts for you. So please note them down and understand them carefully. Water sharing disputes are only going to rise in India and not ebb. जल साझा करने संबंधी विवादों में भारत में आने वाले वर्षों में वृद्धि ही होगी, कोई अवनति नहीं होगी या संख्या कम नहीं होगी. Why? For a very simple reason. That reason is what I would want you to think about and write in your own notebook. The main law is the Interstate River Water Dispute Act 1956. मुख्य कानून जो इस पूरी व्यवस्था को प्रशासित कर रहा है वो है अंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956. To get access to the specific law, the PDF, please go to the web page bodhibooster.com/p/bodhiresources.html. This is where you will find it. And on this page, you will find multiple resources, one of them being related to river water disputes, riparian resources. यहां अलग अलग आपको लिंक्स दिखेंगी. इन पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेस, कुछ पीडीएफ और कुछ वेब पेजेस मिल जाएंगे. There have been multiple tribunals for multiple disputes that cannot go on. ऑथर कहते हैं कि हर बार जब भी विवाद होता है तो एक नया ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, न्यायाधिकरण गठित होता है. ऐसा आखिर कब तक चलेगा? समरी ऑफ द मेजर डिस्प्यूट्स इन इंडिया. भारत में अभी तक जो प्रमुख अंतर राज्य जल विवाद हुए हैं उनका एक सारांश हम आपके लिए अलग से बना के ले आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इलेक्शन के मुद्दे होते हैं. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल KWDT 1969 में यह गठित किया गया. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद था. चेयरमैन इस ट्राइब्यूनल के RS बाचावत थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज. 1973 में इनका निर्णय आ गया. द अवार्ड केम इन 1973 एंड द गवर्नमेंट पब्लिश्ड इट इन 1976. टोटल वाटर अवेलेबल वॉज 2060 TMC. TMC is not Trinamool Congress. It is 1000 million cubic feet. पॉइंट नंबर 5 स्क्रीन पर देख लीजिएगा. 1000 मिलियन घन फीट अर्थात 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर्स, 2.8 करोड़ घन मीटर अर्थात 2831 करोड़ लीटर्स. तो पहला था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल. यह टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. अवार्ड का मतलब होता है फाइनल डिसीजन के हिसाब से जल का बंटवारा. इसी तरह पॉइंट 4B में गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल GWAT के फैक्ट्स दिए, उन्हें पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए. नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल NWDT दे रखा है. एंड द मोस्ट कंटेंशियस ऑफ देम कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, जो सुलझ ही नहीं पा रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच. सतलज यमुना लिंक कैनल SYL 2016 और 2017 के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब में बनकर उभरा. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच यह है. जिस तरह नर्मदा में राजस्थान के कुछ जल रहित जिलों को शामिल किया गया था अवार्ड में, उसी तरह यहां पर भी आपको दिख रहा है. The technical details of all these can be found in the resources mentioned on this web page. Just go to that web page and download these files and then study. वो स्टडी आप ही को करनी है, गहराई से करें, और जितना आप उसे पढ़ेंगे उतनी बातें आपको समझ में आएंगी. Legal position of the central government is Article 262(2) of Constitution plus Section 11 of the 1956 Act says that the Supreme Court has no jurisdiction in the distribution of water. केंद्र सरकार ने ये पोजीशन ली है कि संविधान के अनुच्छेद 262(2) और 1956 के कानून के खंड 11 के तहत सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता. लेकिन हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 126(2) के तहत स्वयं को यह अधिकार दिया है कि इन निर्णयों से पैदा होने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है. आई होप the technical and the legal position is very clear.
But a permanent water tribunal is of little use unless center shows a strong will to punish defaulters. भारत में जल न्यायाधिकरण भली स्थायी बना दिए जाए, उनके निर्णय आने का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार उस राज्य को दंडित करने का मन और हिम्मत न बना ले जो निर्णय नहीं माने. अब आप ये सोच सकते हैं कि हाउ कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट पनिश अ स्टेट. देयर आर मेनी वेज अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पनिश अ स्टेट इन इंडिया. The central government controls lot of financial resources and investment capabilities via the PSUs. यहां मैंने आपको हिंट दी है, इस पर आप रिसर्च कीजिएगा. Lot of objective questions are possible in the exam on the topic of water disputes. Subjective essay type questions are on the screen. वो कौन सा जल विवाद निर्णय था जो अपने लक्ष्य हासिल करने में अभी तक पूर्णतः विफल हुआ, क्यों? और उसी तरह दूसरा प्रश्न. I hope this analysis gave you a good insight into the technicalities also. A major issue dominating the political discourse in India for quite some time now has been the regularity with which elections are conducted in India, thereby completely throwing governance off track. भारत में एक मुद्दे ने प्रमुखता से अपना स्थान मुख्य समाचारों में बनाया हुआ है और वो है चुनावों की निरंतरता, जिससे प्रशासनिक दक्षता पर बहुत भारी उल्टा असर पड़ता है. This analysis will shed an amazing light on this issue. The topics or the subject areas from where this analysis is drawn is mentioned on the screen, and so is the source. One nation, two elections. How to stop parties from always being in campaign mode and get them to govern. किस प्रकार से राजनीतिक दलों को हमेशा चुनाव लड़ने की अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकालकर प्रशासन की तरफ ध्यान लगाने हेतु विवश किया जा सकता है. This is a fantastic analysis which will give you amazing points for any exam, group discussion, interviews, and your professional life. India is the world's largest and most diverse democracy. We can all be very proud of it. भारत विश्व का सबसे विशाल और सबसे अधिक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है और हम सब इस पर निश्चित तौर पे गर्व कर सकते हैं. कई भारतीयों को ही ये बात अतिरंजित लगती है. A lot of Indians think that this is an exaggeration. There are other countries also. I can guarantee that in terms of population, of course, we are the biggest, 134 crores and counting. China is not a democracy, so that's ruled out. Diversity. It is an absolute certainty that no country in the world has a diverse character, as diverse a character as India has. So no point even in getting into that. It's an established fact. The biggest disease today, as per this author, is too much campaigning, too little governance. जैसा हमने पहले बोला, बहुत ज्यादा चुनाव 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 की नारेबाजी और भाषणबाजी, क्योंकि व्यवस्था ही वैसी बनी हुई है. प्रशासन करने के लिए सरकार के पास समय नहीं बचता, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे ही सबसे बड़े नेता होते हैं जो चुनावों में भी खड़े होते हैं. Each election is taken as a referendum, even if a partial referendum, on the union government's working. केंद्र सरकार की समस्या ये है कि किसी छोटे से राज्य में होने वाले चुनाव को भी, बड़े में तो डेफिनेटली हाँ, छोटे से राज्य में होने वाले चुनाव को भी केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली पर ही एक प्रश्न चिन्ह के रूप में हमेशा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है. नेट रिजल्ट इज इट फोर्सेस पॉलिसी डिसीजंस टू बी डेफर्ड, plus senior government members are always on electioneering mode, plus repeated polarizing of parliamentary debates. ये तीन इसके दुष्प्रभाव हैं. ये बहुत अच्छे ऐसे में आपको 1 2 3 करके पॉइंट बनाने में काम आएंगे. लगातार चुनावों की तीन सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं कि हमारे नेताओं को नीतिगत निर्णय टालने पर मजबूर होना पड़ता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि नीतिगत निर्णय अक्सर कठोर होते हैं. अब चुनाव सामने आ रहा है तो कठोर निर्णय कैसे ले लें, वोट ही नहीं मिलेंगे या डिवीजन हो जाएगा वोट्स में. केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी यानी कि मंत्री हमेशा चुनाव में लगे रहते हैं और
संसदीय बहसें लगातार ध्रुवीकरण का शिकार होती रहती हैं। तो इससे भारत का तो नुकसान ही है ना। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैज अ साइकिल ऑफ परपेचुअल इलेक्शंस लाइक इंडिया हैज। भारत जैसी चुनावी निरंतरता विश्व की अन्य किसी भी लोकतंत्र में नहीं है, और यह गर्व करने का नहीं, यह शर्म करने का विषय है। First four general elections of India, 51, 52, 57, 62 and 67, mostly simultaneous elections except one or two states. पहले 4 भारत के आम चुनावों में लगभग सारे चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन उसके बाद ये पूरी साइकिल बिगड़ गई। Why did the cycle really go to dogs? Because Article 356 was frequently used after 1967 by the Union government, that is, Mrs. Indira Gandhi. 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार, जिसमें से ज्यादातर ये परिपाटी इंदिरा गांधी जी की सरकारों के द्वारा स्थापित की गई, ऐसा आरोप लगता रहा है, बार बार लगाती रही। तो इलेक्शंस होने का कोई मतलब ही नहीं, सरकारी भंग हो गई तो मध्यावधि चुनाव होंगे। आर्टिकल 352 ऑल्सो फिगर्ड वंस, इमरजेंसी एंड द लोकसभा एक्सटेंशन फॉर 1 year. द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑल्सो रेफरेंस्ड हियर, जब आपातकाल लगा था अनुच्छेद 352 के तहत। ऑथर सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, अभी तक क्या क्या हुआ, पहले ये वो बताते हैं। इन 1999 द लॉ कमीशन गेव सर्टन रिकमेंडेशंस। विधि आयोग ने 1999 में कुछ सिफारिशें की थीं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी कुछ सिफारिशें की थी, संसदीय स्थायी समिति ने भी सिफारिशें की थी। इलेक्शन कमीशन केम अप विद अ व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र निर्वाचन आयोग लाया था, एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स हैव बीन एग्जॉर्टिंग द होल सिस्टम, लेकिन अभी तक ठोस कुछ भी नहीं हुआ है। 2015 में देयर वाज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। द रिकमेंडेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया शुड हैव अ 2-cycle इलेक्शन प्रोसेस. First cycle should have Lok Sabha elections and half the state elections, state assembly elections, and 2.5 years later we should have state elections for rest half of the states. समझिए ऐसा क्यों किया गया, बहुत ही अच्छा सुझाव। संसदीय स्थायी समिति ने 2 चक्रीय चुनाव प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। पहले चक्र में लोकसभा के सारे चुनाव हो जाएं और साथ में आधे राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं, और 2.5 वर्ष के बाद बचे आधे राज्यों के चुनाव हो जाएं। ऐसा क्यों, 3 चक्र क्यों नहीं, सिर्फ एक ही चक्र क्यों नहीं? 11th, अ रिजिड 5-year टर्म इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। 5 वर्ष की कठोरता वाला यदि हम एक चक्र चुन लेंगे, व्यवस्था चुन लेंगे, तो समस्या यह है कि यदि खंडित जनादेश मिला, कोalition सरकार बहुत ही खंडित बनी, तो 5 साल तक देश क्या रोता रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट विल गेट अ मैसेज एंड येट बी एबल टू गवर्न। यदि ये 2.5 साल वाला हम चुन लेते हैं तो फायदा यह होगा कि 2.5 साल के बाद राज्य चुनावों में यदि केंद्र सरकार में जो पार्टी या जो 2-4 पार्टियां कोalition बना के राज कर रही हैं, वो इस 2.5 साल बाद हुए चुनावों में बड़े बुरी तरह से हारती हैं, तो उन्हें केंद्र छोड़ना नहीं है, लेकिन उन्हें संदेश मिलेगा जिससे इंडियन डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन बना रहेगा। एंड थर्ड, इट हैज बीन ट्राइड इन द यूएस ऑलरेडी, वो समझाया स्क्रीन पर देख लीजिए। सो इंस्टेड ऑफ 1 India 1 election, इट इज बेटर टू हैव 1 nation 2 elections। तो ऑथर ये कहते हैं कि भारत में एक चुनाव, एक भारत के बजाय एक राष्ट्र 2 चुनाव बेहतर है। इस पर आप अपने विचार हमें अवश्य बताइए, कमेंट्स थ्रेड में आप लिखिए, and let us know what exactly you feel about it. Some possible exam questions on this important topic. ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे आ सकते हैं, सब्जेक्टिव निबंध के प्रश्न क्या क्या होंगे स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत में चुनावी निरंतरता का चक्र चलने से पैदा हुई प्रशासनिक समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान सुझाएं। राज्यों में चुनाव चलने से होने वाली कौन सी विशिष्ट समस्याएं केंद्र सरकारों को भारत में झेलना पड़ती हैं? आई होप दैट इज क्लियर। भारत के आम नागरिक से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, रिफॉर्मिंग हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार
स्क्रीन पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हैं और ये किन सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड है वो भी आपको दिख रहा है. लेट अस बिगिन द एनालिसिस ऑफ रिफॉर्मिंग हेल्थ केयर इन इंडिया. First, I will give you a quick 1-minute summary. In India, if you are rich, there is no problem at all. However, if you're not rich, then there is a huge problem you face when you fall ill. Most government hospitals are not in a position to really service you, and most private hospitals are so costly that you cannot get yourself treated there, or you will be wiped out. भारत के लोकतंत्र का सबसे काला पहलू, जो कुछ काले पहलू हैं उनमें से एक है स्वास्थ्य सेवा का गरीबों की पहुंच से दूर होना. इसका टेक्निकल एनालिसिस समझिए, बेहद पावरफुल एनालिसिस. इंडिया फेसेस अ ट्रिपल वैमी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस इन्फेक्शंस प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें 3 मार एक साथ झेलनी पड़ रही है. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, और गैर संक्रामक रोग बहुत मजबूत हो गए हैं. एनुअली वी स्पेंड ₹6 ट्रिलियन ऑन 130 करोड़ पीपल. वार्षिक रूप से हम 130 करोड़ लोगों पर, हमारी जनसंख्या 134 करोड़ हो चुकी है, पर 6 अरब रुपए व्यय करते हैं, जो हमारी इस प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से बहुत ही खराब संख्या है. इसमें एक अच्छी व्यवस्था नहीं बन सकती. तो अच्छी व्यवस्था की परिभाषा क्या है और हम भारत में उसे कैसे बनाएं, आइए एक पॉजिटिव सेंस से उसको समझें. प्रॉब्लम्स विद द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, भारतीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की समस्याएं. ABCDE 5 समस्याएं हैं. फंडेड बाय टैक्स, हेंस लो फंडिंग, फोकसिंग लार्जली ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. भारत की पूरी स्वास्थ्य सेवा यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्राइवेट छोड़ दो, भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से कर के द्वारा पोषित होती हैं. अब भारत में टैक्स बेस ही इतना छोटा है, इस वजह से निधियन अल्प होता है और हमारी पूरी व्यवस्था फिलहाल मातृत्व शिशु स्वास्थ्य पर ही केंद्रित होकर लार्जली रह गई है. हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. स्वास्थ्य बीमे पर जितना खर्चा दरअसल हो जाता है उसका 5% ही वसूल हो पाता है. प्राइवेट सिस्टम फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर फॉर अर्बन इंडिया ओनली. जितने भी निजी चिकित्सा संस्थान हैं वे केवल मोटे तौर पर शहरी भारत में ही द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं पर केंद्रित हैं. प्राइमरी हेल्थ तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाला करेगा ही नहीं. 60% ऑफ हेल्थ केयर इज डन बाय इंडिविजुअल्स, इरैशनल मेडिसिन परचेसेस. 60% स्वास्थ्य सेवा व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है. बेवजह दवाइयां खरीदना, बेवजह दवाइयां खाना और अपने पैसे लुटाना. इसमें एक और बहुत गहरा सच छुपा है. छोटे छोटे शहरों और गांवों में छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी तुरंत ठीक होने की लालसा लोगों को दवाई विक्रेताओं और डॉक्टरों पर दबाव डालने के लिए मजबूर करती है और वो लोग दबाव में आकर सीधे सीधे एंटीबायोटिक्स लिख के दे देते हैं. भारत में एंटीबायोटिक्स का जो भयानक रूप से इलीगल यूज चल रहा है उससे बैक्टीरिया ऐसे पैदा होते चले जा रहे हैं जो सब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आती जा रही हैं. कुछ सालों के बाद बैक्टीरिया पूरी तरह से इन दवाइयों के प्रति निष्क्रिय हो जाएंगे. दवाइयां कुछ कर ही नहीं पाएंगी, दवाइयां निष्क्रिय हो जाएंगी, बैक्टीरिया निष्क्रिय नहीं होंगे. 350 करोड़ साल से पृथ्वी पे हैं, मानव को तो आके 10 लाख वर्ष भी नहीं हुए. तो इनसे हमारी लड़ाई तो एक तरफा लड़ाई ही रही है हमेशा, पलड़ा उनका भारी है. फ्री मार्केट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ केयर, एक्सपेंसेस आर वेरिएबल एंड अनएक्सपेक्टेड. पूंजीवाद स्वास्थ्य सेवा के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें होने वाले खर्च हमेशा अप्रत्याशित और बदलते रहते हैं. लोगों को अपनी स्वास्थ्य की स्थिति पता नहीं होती और जब तक बड़ी बीमारी आके शरीर से चिपक न जाए लोग कुछ करते ही नहीं है. Many nations have hence avoided free market system for healthcare. इसीलिए बड़े बड़े विकसित देशों में भी स्वास्थ्य सेवा में पूंजीवाद को और बाजार व्यवस्था को नहीं लगाया गया है. So what are the 3 elements of a good healthcare system? पहला तत्व एक अच्छी सेवा प्रणाली का, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का है प्री पेमेंट विथ पूलिंग, समूहन के साथ पूर्व भुगतान. अर्थात
आप एक ऐसा इंश्योरेंस सिस्टम बनाइए, स्वास्थ्य बीमा की एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि भाई हर नागरिक स्वास्थ्य बीमा ले, और जब 130 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा लेंगे तो प्रति व्यक्ति प्रीमियम बहुत कम आएगा, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और नागरिकों को तो फायदा ही फायदा होगा यदि भगवान न करे वो बीमार पड़े। गवर्नमेंट इज एन एक्टिव ड्राइवर। हर जगह जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, सरकारें मालिक नहीं होती हैं, चालक होती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड परचेजर्स विद ऑर्गेनाइज्ड प्रोवाइडर्स। दवाइयां और सेवाओं जो देनी है लोगों को, उन्हें बहुत ही केंद्रित रूप से खरीदा जाता है और बहुत सुसंगठित बेचने वाले होते हैं, तो दोनों तरफ क्वालिटी मेंटेन्ड होती है। पॉइंट नंबर 7 में आपको हमने उदाहरण दिए हैं। पहला, या तो टैक्स रेट बढ़ा दिए जाए समूहन के साथ पूर्व भुगतान के लिए, और या अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कर दिया जाए। दूसरा, गवर्नमेंट कहां कहां एक सक्रिय चालक का रोल अदा कर रही है। ब्रिटेन यूजेस पब्लिक ट्रस्ट। ब्रिटेन की तो नेशनल हेल्थ सर्विस विश्व भर में जानी मानी है। जर्मनी यूजेस सिकनेस फंड्स, बीमारी कोषों का इस्तेमाल करता है। जापान यूजेस मल्टीपल इंश्योरेंस, एक से ज्यादा बीमा कंपनियां। भारत में कोई भी ऐसी व्यवस्था आज तक बनी नहीं पाई, और इसीलिए भारत में यदि आप गरीब हैं तो वो अपराध नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो वो एक भीषण अपराध है। आई होप आपको इसमें छुपे दर्द का सेंस आया होगा। India too can in some time design such a citizen-friendly system rather than the brutal one which exists today. आज की बेहद क्रूर व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो अगले 10 से 15 सालों में परिवर्तन हो सकता है। I hope this gave you a good insight on healthcare in India. Some possible exam questions. Some objective questions of course on data are possible. Subjective essay type are on screen. इन्हें पढ़ लें। भारत में गरीब होना अभिशाप नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बीमार हो जाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा अभिशाप है। समालोचनात्मक विश्लेषण करके इसे समझाइए। एक कल्याण राज्य जो गरीबों और निशक्त जनों के लिए है, इस वादे को चरितार्थ करने के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत को क्या करना होगा। आई होप दीज आर क्लियर। Bodhi Booster is brought to you by PT Education and PT's IS Academy. We thank you for your terrific response and we hope to have the support for all times to come. Use the resources in Bodhi Bhasha to the fullest, easy, spontaneous and practical way of learning English. सरल, सहज और उपयोगी तरीके से अंग्रेजी सीखना। आज की न्यूज का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारी वेबसाइट news.bodhibooster.com पर उपलब्ध है। वहां जाइए, आज की पोस्ट ओपन करें, उसको पूरा पढ़िए, उसमें बहुत कुछ और भी है, और उसके बाद आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी तैयार कीजिए। बोधि समाचारों और विश्लेषण के आज के अंक में इतना ही। संदीप मानुधने को अब इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, जय हिंद।